अगर आप इस डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दो, It will be speed. excellent, that will be speed. So this distance divided by time is speed. And if you divide displacement by time, what do you get? Velocity. That's right. If you divide displacement by time, you get velocity. ठीक है, तो अगर मैंने इसका फॉर्मूला लिखना हो यहाँ पे तो आई कैन राइट स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस divided by time and velocity equals Ma'am, displacement. what are the units for distance and displacement? Sorry, could you repeat that? What are the units for distance and Oh, displacement? yeah, good question. I forgot to tell you that. Okay, so I want you guys to tell me what is the unit of length? Meters? That's right. So this is a length and displacement is also a length. तो दोनों के unit क्या है? Meter. Both of them has an SI unit of meter. So you have an SI unit, which is meter, and same unit for displacement. Here, just move the circle diagram down a bit. Okay, there you go. Okay. अच्छा, अब आप जब डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते हो तो आपको स्पीड मिलती है, एंड व्हेन यू डिवाइड डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम यू गेट वेलोसिटी. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ वी कैन राइट दैट इन वर्ड्स. अगर आपको कोई भी डेफिनेशन याद, एक तो डेफिनेशन याद होनी चाहिए, दैट्स द परफेक्ट थिंग. अगर आपसे वो पूछे कि डिफाइन स्पीड, you can just write this definition and you'll get the mark. If they ask you to define velocity, you can just write the definite the formula, sorry, and you'll get the mark. Like if you want to write that in words, there's one way you can do that. And remember कि जब भी कोई quantity टाइम से डिवाइड हो रही हो तो हम इस तरह उसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं. आप ये याद कर लो. Rate of change of that quantity. यहाँ पर डिस्टेंस से डिवाइड हो रही है तो आप कर लोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस. और अगर मैंने वेलोसिटी के लिए लिखना हो तो आई राइट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ओके, रेट ऑफ चेंज here. Just like that. Ma'am, rate means with respective to time. Yes, that's right. Rate means with respect to time. It means how is something changing with time. Okay, so you can just learn that. अगर हम अभी हम आगे भी देखेंगे कि there are other quantities being divided by time and you can use the same definition for them as well. Just use rate of change of and the quantity that time is dividing, like the quantity that time is dividing. So rate of change of displacement, rate of change of distance. Any confusion here? No, ma'am. Okay, Ma'am, can now you repeat the SI units? I didn't. for distance and displacement? Yes, ma'am. Yeah, sure. So both of them are lengths, okay? And the unit for length is meter. हम दूसरे units भी use करते हैं, like we use kilometer, miles, and yards, etc. लेकिन standard unit or SI unit is meter.
डिस्टेंस भी लेंथ है और डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ है, इसलिए दोनों के यूनिट्स मीटर है। क्लियर? यस मैम। लेकिन मैम स्पीड का जो क्या होगा, पर मिनट होगा या आवर होगा? Yeah, that's what I'm going to tell you now. Let's talk about units now for speed and displacement. अगर आपको कभी यूनिट्स भूल जाए तो you can even derive them for speed and velocity. अच्छा, let's look at the formula. Speed का formula है distance divided by time. तो distance का यूनिट अभी हमने क्या पढ़ा? मीटर्स। और टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकेंड्स। So you can say meter divided by second. Division का साइन दरमियान में, ऊपर meter, and there's a second in the denominator. So the SI unit for speed is meters per second. Clear? Yes, ma'am. Okay. Now let's do the same for velocity. You have displacement in the numerator, so that's meters. क्योंकि displacement का ऐसा unit है meter. And then you have a division sign. And then you have a time in the denominator. So time का ऐसा unit होता है sorry. Sorry about that. Time का ऐसा unit होता है seconds. So again, you have meters per second for velocity as well. So the SI unit for velocity is also meters per second. Any confusion or question here? No, ma'am. Not. Okay, excellent. ठीक है. अब मैं I'll write down a question here, and I'll tell you guys how to do a question in Ma'am? physics. Yes. The SI unit of speed is mostly kilometer per hour. That is a unit that the examiner can use mostly. लेकिन जो SI unit है ना, it's the standard unit, the unit that's used worldwide. That is meters per second. जैसे मैंने distance के बारे में भी आपको बताया था कि distance के लिए भी हम और दूसरे units use करते हैं, जैसे कि हम kilometers use करते हैं, yards use करते हैं, लेकिन जो SI unit है ना, वो meters है। उसी तरह speed का जो SI unit है, वो meters per second है, लेकिन हम दूसरे units भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि kilometer per hour and all of that. लेकिन जो standard या फिर जो SI unit है, वो meters per second है। इसीलिए जब आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स कन्वर्जन्स करनी पड़ती हैं। अगर आपको उन्होंने टाइम आवर्स में दिया हो तो यू हैव टू कन्वर्ट दैट टू सेकंड्स ताकि आपके यूनिट्स कंसिस्टेंट हो। एंड वी आर जस्ट गोना डू एन एग्जांपल फॉर दैट जिससे आपको अच्छी और भी समझ आ जाएगी। लेकिन इज दैट क्लियर नाउ कि ऐसा यूनिट मीटर्स पर सेकंड होता है? Yes, ma'am. Okay, let's look at an example, और I hope कि इस example के बाद आपके जो conversion के confusions हैं वो clear हो जाएंगे. Question is, a car is moving at a speed of 250 meters per second. The car travels for 2.5 hours. Find the distance traveled. Okay. Now, I will read this question for you guys myself because I want to show you कि आपने exam में question कैसे पढ़ना है. It seems a bit silly at first, but it's really helpful if you do that. क्योंकि एग्जाम में आपके पास इतने छोटे क्वेश्चंस नहीं होते. You get complete questions on one topic जिसके सब parts होते हैं, like part A, part B, part C and so on. For part A के भी आगे सब parts होते हैं, part A1, A2,
एटसेट्रा एटसेट्रा। तो एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप बार बार आके अपनी क्वेश्चन को रीड करो। तो व्हाट यू डू इज दैट यू मेक लिटिल बॉक्सेस अराउंड योर वैल्यूज एंड यू राइट लोअर केस अल्फाबेट्स टू डिसाइड कि आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। जैसे कि a car is moving at a speed of 250 meters per second. I'm just going to draw a box around 250 and write S here for speed. The car travels for 2.5 hours. I'm going to draw a box around 2.5 hours and write little t here. Okay, time mera, like this is the time given to me. And then I'm going to draw another box around distance and draw a question mark. If this is what I'm trying to find. Okay? So what is given to you? You have speed. That is 250 meters per second. And you have time. That is 2.5 hours. And you want to know the distance. Can you guys recall any formula जिसमें ये तीनों terms आ रही हों? Speed is equals to distance. Excellent. So the first thing that you do is you write down the formula. Over That time. is, yes, Uh, speed equals distance divided by time. Now we need the distance, so we need to rearrange the formula. So the first thing, you write the formula. The second thing, you rearrange it. अच्छा, rearrange करके हमारा formula क्या हो जाएगा? हमें चाहिए डिस्टेंस, तो रीअरेंज हम ऐसे करेंगे कि आपका डिस्टेंस जो है वो एक साइड पे हो और बाकी सब कुछ इक्वेशन की दूसरी साइड पर हो। ठीक है, तो डिस्टेंस आपका इस साइड पर आ जाएगा इक्वल, इक्वेशन की उस साइड पर पहले स्पीड था, तो यू कैन राइट स्पीड एज इट इज। अगर टाइम यहाँ पर डिवाइड हो रहा था तो दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा? Zen, can you tell me? multiply. That's right. तो टाइम यहाँ पर डिवाइड हो रहा था, इट विल गो टू द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड। तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई? डिस्टेंस इक्वल्स स्पीड इनटू टाइम। पहली चीज, यू रिकॉग्नाइज, बल्कि द फर्स्ट थिंग इज यू रीड योर क्वेश्चन एंड यू रिकॉग्नाइज व्हाट इज गिवन टू यू एंड व्हाट दे आर आस्किंग यू। सो दिस इज व्हाट्स गिवन एंड दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग यू टू फाइंड। तो पहले तो आपने ये आइडेंटिफाई कर लेना है। दूसरी चीज, you're going to write down a formula that relates all of these things. ठीक है। थर्ड, आपने उस फॉर्मूला को रीअरेंज करना है और उस वैल्यू या टर्म को सब्जेक्ट बनाना है या आइसोलेट करना है या एक साइड पे इक्वेशन की रखना है जो आप फाइंड करना चाह रहे हो, और बाकी सब कुछ इक्वेशन की दूसरी साइड पर होना चाहिए। ओके, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। यहां तक कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन? Ma'am, for multiplication, is it compulsory to change the time into standard unit? Yes, that's right. We are just going to move on to the third point here. That is to plug in the numbers. Plug in values or numbers. So distance equals speed आपको किस यूनिट में गिवन है? मीटर्स पर सेकंड में, तो that's good to go. 250 meters per second. But time is given in hours. तो आप 2.5 को exactly as it is नहीं लिख सकते. You have to do some conversions. Now I'm going to write down, like I'm going to make a little chart here for conversions for time. So let's do that. So 1 hour has
60 minutes. So if you're going from hours to minutes, you multiply by 60. और हर 1 मिनट में 60 seconds होते हैं. तो अगर you're converting from minutes to seconds, you multiply by 60. Like that. और अगर आप directly hours से seconds में जा रहे हो, so you're going to multiply by 60 twice. That is 3600. So if you're going from hours to seconds like that, you multiply by 3600. Is that clear? Yes, ma'am. अगर आप सेकंड से मिनट्स में आ रहे हो तो आप ऑपोजिट करोगे. You're going to divide by 60. और अगर आप मिनट से आवर्स में आ रहे हो तो then you're going to divide by 60 again. और अगर आप सेकंड से आवर्स में जा रहे हो तो you're going to divide by 60 twice. Or you can say that you have to divide by 3600. Like that. Hours से seconds में जाने के लिए you divide, sorry, just a second. Divide by 3600. अब अगर आपको कभी भूल जाए कि मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है तो आपने ऐसे सोचना है कि अगर हम मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं जब, तो हमारा नंबर बड़ा हो जाता है, राइट? तो 1 आवर में ज्यादा मिनट्स और सेकंड्स होते हैं. यानी कि अगर 1 आवर है तो उसमें ज्यादा मिनट्स हैं. तो 1 आवर को अगर 60 बनाना है तो उससे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है? 1 आवर में ज्यादा मिनट्स होते हैं तो आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपका नंबर बड़ा हो जाता है. लेकिन 1 सेकेंड में तो आवर नहीं होता ना. 1 सेकेंड हैज अ फ्रैक्शन ऑफ एन आवर. 1 सेकेंड में 1 आवर का छोटा सा पार्ट होगा, राइट? तो अगर आपने एक छोटे वैल्यू से उससे भी छोटी वैल्यू में जाना है तो यू डिवाइड. ठीक है? तो अगर आप आवर्स से सेकेंड्स में जा रहे हो तो 1 आवर में you have 3600 seconds. तो उससे आवर से सेकंड में जाने के लिए आप मल्टीप्लिकेशन यूज करोगे because the number is getting bigger. और अगर आप सेकंड से आवर्स में आ रहे हो तो you divide by 3600. Is that clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आपने ये याद कर लेना है. Let me draw. Okay, here. This is important. इसके साथ साथ मैं आपको बाकी कन्वर्जन यूनिट्स भी दिखाती जाऊंगी और फैक्टर्स भी दिखाऊंगी इंशाल्लाह. So now your time was given in hours और आपने seconds में जाना है. तो can someone tell me किस hours से seconds में जाने के लिए किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3600. That's right. So you multiply by 3600. Let me get my calculator. And then you plug these numbers in your calculator. 250 into 2.5 into 3600. So that is 225 and 40 meters. The car traveled for this much distance. The car covered this much distance in 2.5 hours if it was going at an average speed of 250 meters per second. ठीक है? इतना distance car ने cover किया. और यहाँ पर I'll also try to tell you guys one more thing. And it's about prefixes. अगर आपके पास distance meters में है, अगर तो एग्जामिनर ने आपको ये आंसर ब्लैंक इस तरह दी हुई और यहाँ पे m लिखा हुआ है, या इसका मतलब है कि आपने अपना आंसर मीटर्स में ही देना है. ठीक है? लेकिन अगर उसने आपको यूनिट नहीं दिया तो आप अपना फाइनल आंसर दूसरे यूनिट्स में भी दे सकते हो. जैसे कि these 3 zeros can be replaced by a k which means kilo. ठीक है? So you can also write 2250 kilometers. Okay? ये जो prefix kilo है, it means 1,000. So you can replace these 3 zeros with a prefix of kilo and you'll get your answer as 2250 kilometers. Is that point clear? In case of kilometers. Yes. In case of kilometers, Yes, that's ma'am. right. Okay. Acha, we've covered
distance, we've covered displacement, we've covered speed, and we've covered velocity. I was planning to cover acceleration as well, but our time is almost up. So I wanted to ask you guys, आप लोगों के लिए possible है to stick around for like 20 to 30 minutes more, or do you guys want to end here? Yes, ma'am, no issue. मैम, हमें पहला जो इसका लेक्चर था प्रीफिक्सेस वाला और जो बेसिक्स है वो हमें मिल सकता है Yes, that is also in बाद the YouTube, क्लास yeah, recording. That's right. I will send the link of that class to you guys. That recording is posted on YouTube. I remember we did a very detailed lecture on that, and inshallah you can view it. It's posted on YouTube. I'll share the link और आप वो revise कर सकते हो, ठीक है? अभी I'm not going into detail for that. उसकी दो reasons थे. एक ये कि वो posted है, और दूसरा reason ये था कि वो chapter बहुत ज़्यादा important नहीं है. It is important, लेकिन इतना सा important है कि आपके concepts clear है ना, तो आप उस पे ज़्यादा time spend ना करो, ठीक है? एक दफा आप वो lectures देख लेना, और अगर आपको कोई confusion हुई तो आप next class में मुझसे पूछ भी सकते हो. उसके अलावा अब जो हम chapters करेंगे वो ज़्यादा important होंगे, okay? All right. मैम आपने प्रीफिक्सेस के ये हमें सिर्फ वही देंगे एग्जामिनर? I'm sorry, can you repeat that? क्या question था आपको? मैं समझ नहीं आई. प्रीफिक्सेस जी, prefixes क्या? ये किलोमीटर्स. अच्छा, आप पूछ रहे हो कि वो हमें ये यूनिट बताएंगे कि नहीं बताएंगे. मैं ये बता रही थी आपको कि आपको लेट्स से ये क्वेश्चन है ब्ला 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 ब्ला, यहाँ पर आपकी आंसर ब्लैंक है, यहाँ पर आपने आंसर अपना रिपोर्ट करना है. तो अगर तो एग्जामिनर ने एम लिखा हो, यानी कि मीटर्स लिखा हो, तो यू कैन राइट योर आंसर इन मीटर्स. अगर एग्जामिनर ने कोई यूनिट ना लिखा हो तो आप अपना आंसर किलोमीटर्स में भी लिख सकते हो. अगर तो एग्जामिनर ने स्पेसिफाई किया हो कि मीटर्स में आंसर दें, फिर आप ये वाला आंसर लिखोगे. लेकिन अगर उसने कुछ भी ना बताया हो, सिर्फ एक ब्लैंक दे दियो आंसर जहाँ पे आपने लिखना है वहां पे, तो आप अपना आंसर किलोमीटर्स में भी दे सकते हो. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ये कन्वर्जन नहीं करनी. ये कन्वर्जन करनी इंपॉर्टेंट है. उसकी वजह ये है कि आपको स्पीड मीटर्स पर सेकंड में दी हुई थी, ठीक है? इसलिए आपका टाइम भी सेकंड्स में होना चाहिए. कन्वर्जन करना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि आपके सारे यूनिट्स कंसिस्टेंट हों. जो वैल्यूज उन्होंने दी हुई हैं वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए. यानी कि अगर स्पीड मीटर्स पर सेकंड में है तो आपका टाइम भी सेकंड्स में होना चाहिए. अगर एग्जामिनर ने स्पीड किलोमीटर्स पर आवर में दी होती, फिर आपको ये कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं थी. ओके, तो आपने अपने टाइम के यूनिट को स्पीड के यूनिट के साथ कंसिस्टेंट करना है. डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? और इसे हम प्रीफिक्सेस कहते हैं. प्रीफिक्स कहते हैं कोई भी टर्म्स जो आप यूज कर. अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि ये नंबर, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ. ये नंबर बहुत बड़ा है, राइट? इसको बार बार लिखना इज रियली हार्ड. तो उसका सोल्यूशन क्या है कि पीपल केम अप विद दीज प्रीफिक्सेस, यानी कि ये 3 जीरोस लिखने के बजाय मैं एक के लिखती हूँ तो ये किलोमीटर्स है. ओके, सो ये जो लिटिल के है जो इस मीटर यूनिट से पहले जो आया है वो प्रीफिक्स है. प्री मीन्स पहले. I learned it that way. Pre means पहले. आपका जो स्टैंडर्ड यूनिट मीटर है उससे पहले मैंने के लगा दिया, किलो. ये एक प्रीफिक्स है और इसकी वैल्यू कितनी है? 1000. तो आप इस 1000 को मिटा के, यानी कि इन 3 जीरोस को मिटा के सिर्फ के लिख सकते हो यहाँ पे. ओके, जी हाँ जी. इसके अलावा आपको प्रीफिक्स मिलते हैं, जैसे कि अगर आपके पास ये नंबर होता है 1 2 3 4 5 6. अब ये 6 जीरोस हैं, तो लेट मी राइट दैट डाउन हियर. 1 2 3 4 5 6. अगर तो मैंने किलोस में लिखना हो तो मैं ये इन 3 जीरोस को मिटा के 2000 के लिख सकती हूँ सिर्फ. लेट्स से ये फॉलोअर्स हैं किसी के.
आपने इंस्टाग्राम पे भी देखा होगा के आता है, यानी कि 1000। लेकिन अगर मैंने इस 1000 को भी हटाना है, तो व्हाट कैन आई राइट? ये 6 जीरोस हैं, 1 2 3 4 5 6, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ? एम, मिलियन या मेगा। दैट्स अनदर प्रीफिक्स। फॉलोअर्स का कोई यूनिट नहीं होता, सिर्फ एक नंबर ही है, इसलिए सिर्फ के और एम आ गया। लेकिन अगर लेट्स से we're टॉकिंग अबाउट पार्टिकल्स, कोई भी लेट्स से मास की बात कर रहे हैं, तो अगर 1 2 3 4 5 6 kgs होता, तो आप क्या कर सकते हो? टू, नो नो नो, 2000, 200,000, सॉरी 2000 ग्राम्स, क्योंकि एक्चुअली, हाँ जी, सो इफ यू हैव अ ग्राम, जो कि मास का एक यूनिट है, नॉट ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। एक्चुअली लेट मी टेक अनदर एग्जांपल, इससे आप कंफ्यूज हो जाओगे ग्राम से। लेट मी टेक न्यूटन्स। अगर इतनी बड़ी फोर्स लग रही है किसी चीज पे, तो बार बार अगर आपको ये नंबर लिखना पड़ेगा तो वो मुश्किल हो जाएगा। सो यू कैन यूज अ प्रीफिक्स इन 6 जीरोस की जगह यू कैन राइट एम, यानी कि मेगा, और फिर अपना यूनिट। ये आपका स्टैंडर्ड यूनिट है, न्यूटन्स एसआई यूनिट, और ये एम आपका प्रीफिक्स हो गया। इज दैट क्लियर? यस मैम। Let me give you one more example. 0.1 2 3 4 5 6 7 8. अगर आपके पास ये नंबर होता, तो अगर आपने किसी भी, लेट्स से यू आर अ साइंटिस्ट एंड यू आर राइटिंग दिस नंबर, यू फाउंड दिस नंबर, और आपने अपने रिसर्च पेपर में ये नंबर 200 टाइम्स लिखना होगा। तो अगर आपको 200 टाइम्स ये नंबर लिखना पड़े तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप क्या करोगे? यू गोना यूज अ प्रीफिक्स। कितनी जंप्स हैं यहाँ, कितने जीरोस हैं पॉइंट्स के बाद? 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 जंप्स करोगे आप, तो आपका डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा। तो 2, और ये कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 थे, तो 2 नैनो, और लेट्स से ये मीटर्स है, तो मीटर्स। अगर आपके पास ये नंबर होता 0.0000000002 मीटर्स, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? 2 नैनोमीटर्स। तो इससे हमने ये सीखा कि अगर आपके पास कोई बहुत बड़ा नंबर या बहुत छोटा नंबर हो, तो उसको बार बार लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो यू यूज प्रीफिक्सेस। यहाँ पर इस बड़े नंबर के लिए यू हैव अ मेगा प्रीफिक्स, और इस छोटे नंबर के लिए यू हैव अ नैनो प्रीफिक्स। ठीक है, इस तरह काफी प्रीफिक्सेस हैं, आप वो वीडियो देखना एंड इट विल बी a good recap for you. वैसे थोड़ी सी समझ आ गई प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? हाँ जी जी। Okay, great. I'll just erase that. Before I move on to acceleration, I want us to do one more question. और वो क्वेश्चन होगा हमारी इस डायग्राम से रिलेटेड, जो हमने ऊपर एग्जाम्पल की थी। मैम, यस, ये जो स्पीड और वेलोसिटी का वो सेम है ऐसा यूनिट, तो फिर वो डिफरेंस कैसे पता लगेगा? डिफरेंस पता चलेगा आपको डायरेक्शन से। मैम, डायरेक्शन ऐसा यूनिट का हिस्सा नहीं है नहीं, वेलोसिटी में? डायरेक्शन नहीं। डायरेक्शन, अगर आप ये कैरेक्टरिस्टिक्स पे वापस जाओ, तो फिजिकल क्वांटिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स है मैग्नीट्यूड और एसआई यूनिट, और डायरेक्शन तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है जो कि अलग चीज है। ओके हाँ जी जी। ओके ग्रेट। अब हम ये जो क्वेश्चन करने लगे ना, इससे आपकी जो ये वाली कंफ्यूजन है वो भी खत्म हो जाएगी कि कैसे फर्क पता चलेगा हमें। सो just gonna write a question here. A student walks to school from her house she takes 50 minutes to reach her school.
Find her speed. Average speed. This is part 1, find her average speed. And part 2, find her displacement. ठीक है. Have you guys read the question? Yes, ma'am. Yes, So there's a ma'am. student. She walks from her house to school, and it takes her 50 minutes to walk from her house to school. तो house से school वाला path कौन से? Blue वाला. तो पहले आपने ये अपने जहन में बिठा लेना है. पहली चीज आपने क्या ढूंढनी है? Average speed. Let's start working. I'll just drag this part down here. Let's start working on part 1. First part is to find her average speed. Speed का क्या formula? Meter per second. Formula. So speed is equals to distance over time. Excellent. अच्छा, अब आप मुझे बताओ कि मैं ब्लू वाला डिस्टेंस लूंगी, ये 7 वाला डिस्टेंस लूंगी कि 12 वाले को डिस्टेंस लूंगी. इन तीनों में से कौन सा लूंगी? And also explain me the reasoning behind it. Ma'am, 10 because she is going from that path to school. That's right. अगर आप ये एरो की डायरेक्शन देखो तो हाउस से स्कूल में ये वाला पाथ है, ब्लू वाला. हमने पहले डिसाइड कर लिया था कि ये पाथ है हाउस से स्कूल जाने का. ठीक है, तो you're gonna take the length that's color coded as blue, 10. तो ये डिस्टेंस उसने कितना कवर किया है? 10 किलोमीटर्स. सो अगर मैं इसको ऐसा यूनिट में कर लूं, क्योंकि आपके पास देखो डिस्टेंस किलोमीटर्स में है और टाइम मिनट्स में है, दोनों ही एसआई यूनिट में नहीं है. तो मैं आप दोनों यूनिट्स ही चेंज कर लेती हूँ. 10 किलोमीटर्स, किलो इज 1000, सो 10,000 मीटर्स. 10 किलोमीटर था ना. अगर मैंने ये किलो रिमूव करना है तो मुझे 10 को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. मल्टीप्लाइड बाय 1000. तो इस किलो की जगह, इस k की जगह you get 3 zeros like that. Divided by time. टाइम कितना लगा उसको? 50 minutes. तो 50, 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? तो इसको 50 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे? मैं यहाँ पर डिस्टेंस को भी और टाइम को भी एसआई यूनिट्स में कर रही हूँ. तो डिस्टेंस आपको गिवन था किलोमीटर्स में, तो मैंने उसको मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया, 10 को 1000 से मल्टीप्लाई करके. अब आपके पास टाइम है मिनट्स में, 50 मिनट्स. अगर मैंने मिनट्स से सेकंड्स में जाना है तो मैं 50 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी? मैम 60 से करेंगे. That's right. So 50 multiplied by 60. तो let's do some simplification. ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का 0 इस 0 से कट गया, ये 0 इस 0 से कट गया. And when you do your math, you get the number to be 100 divided by 30. And that's 10 by 3 or 3.3. .3 meters per second. That is not practical. Let me do that again. 50 minutes to seconds. Yes, 3.3333 meters per second. This answer is not practical. Real life में तो कोई बंदा इतने meters एक second में cover नहीं कर सकता, but or maybe a person can if they're running or something.
तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी आई है? 3.3 मीटर्स पर सेकेंड। अब सेकेंड पार्ट है हमारे पास उसकी डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? ओ सॉरी, यस, सेकेंड पार्ट मैम डिस्प्लेसमेंट का स्पीड एंड फॉर्मूला नहीं एवरेज होता। स्पीड बोथ आर सेम। नो, स्पीड के इंस्टेंटेनियस स्पीड, एक पॉइंट पे स्पीड क्या है वो इंस्टेंटेनियस होती है, ठीक है। एवरेज स्पीड क्यों कहा है हमने? क्योंकि अब एक बंदा अगर वॉक कर रहा है तो वो एक कांस्टेंट स्पीड से तो नहीं वॉक करता ना, उसकी स्पीड थोड़ी बढ़ती है, कभी वो थक जाता है तो स्लो डाउन हो जाता है। तो पूरी जर्नी में जो उसकी स्पीड थी उसकी एवरेज लेते हैं हम, तो दैट्स कॉल्ड एवरेज स्पीड। तो अगर आप फॉर्मूला की बात करो तो ये फॉर्मूला एवरेज स्पीड का होता है। They always just say speed, but what they're actually talking about is average speed. तो आपके कोर्स में वो average speed और speed एक ही बात है। अगर वो खुद कहते हैं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसका मतलब है एक इंस्टेंट पे, एक पॉइंट पे उसकी स्पीड ये थी। लेकिन अगर वो सिर्फ स्पीड का वर्ड इस्तेमाल करें तो इसका मतलब है दे आर टॉकिंग अबाउट एवरेज स्पीड। और क्यों एवरेज है? क्योंकि एक पूरी जर्नी में किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड कभी ऊपर होती है थोड़ा, कभी नीचे हो जाती है। तो इसलिए हम पूरी जर्नी की स्पीड की एवरेज ले लेते हैं टू गेट अ बेटर आइडिया ऑफ आवर जर्नी। इज दैट ओके ना? यस मैम। ओके ग्रेट। अब आप मुझे बताएं कि हाउस से स्कूल तक की डिस्प्लेसमेंट क्या है? 7 kilometers. That's right, 7 kilometers. और now the third part is find her velocity. वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? Displacement over time. That's right, displacement divided by time. डिस्प्लेसमेंट आपके पास कितनी है? पिछले पार्ट में हमने कितनी बताई है? 7 किलोमीटर। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट वाले केस में टाइम तो कम आ जाएगा, क्योंकि 10 किलोमीटर ट्रैवल करने में उतना टाइम तो नहीं लगेगा जितना 7 में लगेगा। दैट्स अ वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। लेकिन यही हम पॉइंट देखने लगे हैं कि पॉइंट ए से बी तक जाने तो का जो टाइम है वो सेम रहेगा। उसकी वजह ये है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, ये हमारा इमेजिनरी रूट है। एक्चुअल पाथ हमारा क्या था? ब्लू वाला। ये जो हाउस से स्कूल तक की जो पिंक लाइन मैंने एक्सटेंड की हुई है, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज योर इमेजिनरी शॉर्टेस्ट लेंथ। स्टूडेंट पाथ कौन सा ले रहा है? ब्लू वाला। तो टाइम उसको 50 मिनट्स ही लगेंगे। लेकिन वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट को पिंक रूट ले लेंगे, ठीक है। अगर तो वो आपको ऐसा क्वेश्चन देते कि उसमें वो कहते कि एक पिंक रूट है हमारे पास मौजूद, तो फिर आपको वो टाइम भी देते कि इस रूट पे चलने का थोड़ा टाइम लगेगा। इसका मतलब है कि उसने रूट भी ये पिंक वाला लिया है और डिस्प्लेसमेंट भी ये पिंक वाली थी, फिर वो आपको टाइम देंगे। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि रूट स्टूडेंट ने ब्लू पाथ लिया, ठीक है। तो टाइम विल बी द सेम और वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट बदल जाएगी सिर्फ। इसके बाद मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताऊंगी जिससे आपकी कंफ्यूजन मजीद दूर हो जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट है 7 किलोमीटर्स, तो किलोमीटर्स को आप मीटर्स में कर लो पहले। 7 into 1000, और टाइम आपके पास 50 मिनट्स ही है। 50 multiplied by 60 and you get 2.33 meters per second.
अब आप में से जो भी मुझसे पूछ रहा था कि आपको स्पीड और वेलोसिटी में फिर डिफरेंस कैसे पता चलेगा, ऐसे पता चलेगा, इनकी वैल्यूज ही बदल गई हैं। अब मैं आपको ये रिकैप करती हूँ ये पॉइंट, ताकि आपको ये अच्छी तरह समझ आ जाए। हुआ यहाँ पे ये है कि अ स्टूडेंट इज गोइंग फ्रॉम हर हाउस टू स्कूल, और वो पाथ कौन सा ले रही है, ब्लू वाला। तो आप उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, आप ये ब्लू वाली लेंथ लोगे और उसको टाइम से डिवाइड कर दोगे, दैट इज 50। तो आपके पास क्या आएगा, 3.3 मीटर्स पर सेकेंड। और वेलोसिटी निकालने के लिए हम कहते हैं अगर तो कोई ऐसा रास्ता होता जो स्कूल से हाउस तक लाइक एक स्ट्रेट पाथ होता, एक स्ट्रेट लाइन अगर मैं ड्रॉ करूं हाउस से स्कूल में जाने, लाइक सॉरी, लेट मी रिवर्ड माय फ्रेज। अगर तो मैं कोई ऐसा रास्ता निकालूं कि हाउस से स्कूल में एक स्ट्रेट लाइन में चली जाऊं, तो फिर मुझे कितनी वेलोसिटी होगी। तो उसका आंसर आपके पास 2.33 आता है। अब आप देखो कि ये आंसर लाइक इट मेक्स सेंस। अगर आपके पास एक लंबा रास्ता है तो 50 मिनट्स में कवर करने के लिए आपको तेज भागना पड़ेगा। अगर आपके पास एक छोटा रास्ता है तो उन्हीं 50 मिनट्स में कवर करने के लिए इवन इफ यू वॉक अ लिटिल स्लो, आप पहुंच जाओगे उधर टाइम पे। थोड़ी सी समझ आई इसकी, आई नो इट्स अ लिटिल कंफ्यूजिंग, लेकिन यू विल अंडरस्टैंड इट ओवर टाइम। अभी आपको थोड़ी बहुत इसकी एटलीस्ट समझ आनी चाहिए। एनी क्वेश्चन? यस मैम, लेकिन मैम ये हमेशा जरूरी है कि 7 किलोमीटर्स एक इमेजिनरी लाइन है? नहीं, हमेशा जरूरी नहीं है। लेट्स सी अगर वो इमेजिनरी ना हो। अगर तो आपके पास लेट्स से हाईवे है, हाईवेज मोस्टली स्ट्रेट रोड्स होते हैं, स्ट्रेट पाथ्स। लेट्स से दिस इज योर स्टार्ट पॉइंट, पॉइंट ए, एंड दिस इज योर एंड पॉइंट, पॉइंट बी। और आपके पास एक रास्ता मौजूद है डिस्टेंस से ए से बी तक स्ट्रेट लाइन में, और एक कार है, इट्स गोइंग फ्रॉम ए टू बी। ओके, तो ए से बी जाने तक उसने जो टोटल लेंथ कवर की है, लेट्स से दैट इज 10 किलोमीटर्स। तो वो उसका डिस्टेंस हो गया, क्योंकि उसने उसका रास्ता ही ये है। जो चीज जो रास्ता लेती है वो उसका डिस्टेंस होता है। तो इसका डिस्टेंस यहाँ पर क्या हुआ, 10 किलोमीटर्स। और अगर आप ए से बी स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन एक्सटेंड करो, फिर भी यही बनता है। तो आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी यही होगी। इस सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट भी 10 किलोमीटर्स है। डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो इक्वल टू 10 किलोमीटर्स। तो हमारी कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है, जब आपके पास स्ट्रेट पाथ हो, स्ट्रेट लाइन मोशन कहते हैं इसको, स्ट्रेट लाइन मोशन हो, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक जितने होते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जब आपके पास स्ट्रेट लाइन मोशन हो तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अब आप मुझे बताओ, अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है और मैं दोनों को सेम टाइम से डिवाइड करूं, तो आपके पास स्पीड और वेलोसिटी इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? हाँ जी जी होंगे। ओके ग्रेट, एक्सीलेंट। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है और स्पीड वेलोसिटी के इक्वल हो जाती है फिर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपने ये याद रखना है। स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट और स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी। इसीलिए आप देखोगे जब हम पास्ट पेपर्स करेंगे ना, तो एग्जामिनर ने स्पीड की जगह वेलोसिटी का वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है और वेलोसिटी की जगह स्पीड का इस्तेमाल किया होता है। उसकी वजह ये होती है कि स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। ओके, अभी अब मैं इसको मजीद लाइक डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, आई विल गो इनटू डिटेल्स व्हेन वी डू पास्ट पेपर्स। और मैं आपको वहां पे समझाऊंगी कि ये इक्वल होते हैं, इसलिए हम इन टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज भी कर लेते हैं, लाइक डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट यूज कर लेते हैं, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है और दोनों इक्वल हो जाते हैं। अब यहाँ पर आपको एक मैं स्टेटमेंट लिखूंगी,
इस सेक्शन में इधर, or maybe I'll just write it down here in the end. कि distance is greater than or equal to displacement. जब आपके पास कर्वी पाथ हो, जब पास कर्व्ड पाथ हो तो वो ग्रेटर होता है डिस्टेंस, और जब आपके पास स्ट्रेट लाइन मोशन हो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं. इक्वल का साइन जो नीचे है, दिस वन राइट हियर, इट मींस कि स्ट्रेट लाइन मोशन है, और जो ऊपर है डिस्टेंस ग्रेटर का होता है जब कर्व्ड पाथ हो. ये क्लियर है आपको? यस मैम. ओके, आज हम यहाँ ही एंड करते हैं. वैसे मेरा प्लान था कि मैं एक्सेलरेशन भी कवर करूंगी, बट आई थिंक इट्स गोना टेक 30 more minutes and I don't think we should continue further. We've already had a class for almost 1.5 hours. So subah we will do acceleration. That will probably take 30 minutes as well. And then we have to do graphs of motion. तो सुबह की क्लास भी I think it will be for 1.5 hours. So be mentally prepared. I'm so sorry for that. I try to go at a fast pace, लेकिन I have to answer your questions, और फिर we need to make sure कि हर concept clear हो, तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाता है. अब आप एक दफा इन सब नोट्स को देखें और मुझे बताएं कि किसी भी कॉन्सेप्ट में आपको कोई कंफ्यूजन है कि नहीं, कहीं पे भी. ये आपको ये वाली बात समझ आ गई, डिस्टेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है? यस मैम. ओके, और कोई भी क्वेश्चन हो आज की क्लास के रिलेटेड? मैम वो यही वाला था कि जो स्पीड और वेलोसिटी थी, इसके अंदर हम जी. लोगों ने वो नहीं कहा कि टुवर्ड्स ईस्ट टुवर्ड्स वेस्ट. दैट्स अ गुड क्वेश्चन. उसकी वैसे आपको लिखना चाहिए, दैट्स रियली इम्पोर्टेंट. लेकिन व्हाट आई वाज ट्राइंग टू फोकस हियर वाज द मैग्नीट्यूड. मैं डायरेक्शन की बात नहीं कर रही थी, मैं आपको भी ये बताना चाह रही थी कि स्पीड और वेलोसिटी मैग्नीट्यूड में कैसे डिफरेंट हो सकते हैं. लेकिन यू आर वेरी राइट, बेहतर यही है कि आप उसकी डायरेक्शन भी लिखो. तो हाउस से स्कूल इज, इफ वी ड्रॉ आर north, south, east, west, this North. will be northeast. Right. Excellent observation. It's better that you write northeast as well. और अगर आप अपनी वो पहले चैप्टर वाली वीडियोस में देखो तो मैंने आपको ये भी सिखाया हुआ है कि एंगल कैसे निकालते हैं. ओके, यस यस मैम, लेकिन अगर हम ये डायरेक्शन ना भी मेंशन करें फिर भी ठीक है वेलोसिटी. ये डिपेंड करता है कि आपको एग्जामिनर ने क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. अगर उसने सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया तो पूछा हुआ है तो आप ऐसे लिखोगे, लेकिन वो ऐसे भी क्वेश्चन करता है कि वो इधर लिखता है, लाइक ऐसे ब्लैंक होती है, लाइक दैट, मीटर्स पर सेकंड ड्यू, यहाँ पे एक और ब्लैंक. फिर आपको वहां पे डायरेक्शन लिखनी होती है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखना होता है. लेकिन सेफ ऑप्शन यही है कि आप दोनों लिखो. अगर दोस्त वो क्वेश्चन में स्पेसिफाई करेगा आपको कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, अगर उसको डायरेक्शन चाहिए होगी तो वो आपसे डायरेक्शन भी पूछेगा, या फिर आपको आंसर स्पेस में डायरेक्शन की जगह दी होगी जहाँ पे आपने डायरेक्शन लिखनी होगी. यस मैम, और इस पेपर में तीनों में कैलकुलेटर अलाउड होता है फिजिक्स में? पेपर 1 जो एमसीक्यूज वाला पेपर है, होल्ड ऑन लेट मी थिंक, हाँ जी, आपको तीनों पेपर्स में कैलकुलेटर अलाउड है, बट आई विल डबल चेक फ्रॉम द सिलेबस और सुबह मैं आपको कंफर्म करके एक दफा बता दूंगी. एनी अदर क्वेश्चन? मैम इनके अभी जी. मैम अभी पेपर्स करने हैं पर हाँ जी,
ये जो हम अभी कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। पहले हम लेक्चर्स करेंगे और फिर हम पास्ट पेपर्स करेंगे। मेरा प्लान तो यही है कि सुबह हम एक्सेलरेशन और ग्राफ्स कंप्लीट करें और फिर नेक्स्ट 2 to 3 days हम पास्ट पेपर्स करेंगे।